है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज समथिंग, okay, one table is very important. The table is, you have to understand ki everything which has a moment of inertia, moment of inertia, it is the rotational analog of mass. It is the rotational analog of mass. Rotational analog of mass means, analog पता है ना, analogy like parallelism, ठीक है। So rotational analog of mass, moment of inertia, it is also called mi or just I. I will be just calling it I, capital I. It is capital, not small I. It has to be capital I, okay? And moment of inertia is, see, first you have to understand what is mass. Okay, what is mass? It is also called rotational inertia. It is also called rotational inertia. Now, what is rotational inertia? What is inertia? What is inertia? Correct, correct. One second. Okay, now, so with, like, by what the inertia was measured? Inertia क्या था? Mass था ना? So if the mass is more, then it will not go anywhere or will not change its state of motion, right? तो यहाँ पे rotational inertia क्या है? Linear translation में you are trying to push a body, you are trying to apply a force, and therefore the body will either move or not move depending on its inertia, mass. You now translate fully to it rotational story. Rotational में क्या होगा? You are trying to rotate the body, and the body will try to resist change in its rotation, state of rotation. How is state of rotation measured? By its rotation. कैसे measure करेगा? अभी तो देखा. By what? By angular velocity, omega से, right? तो अगर ओमेगा जल्दी से चेंज हो जाता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? लेस है, यस और नो? और अगर ओमेगा नहीं होता चेंज तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मोर, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया depends on two things. It depends on, is a function of mass, okay, and it is also distance of, at what distance from AOR. AOR भी बताऊंगा क्या होता है. That mass is, ठीक है। So moment of inertia depend on two things. It depends on mass and it also depends on distance. Now think of, you have to think everything in 3D now, okay? You think of an object which is 3-dimension, okay? And very important, this is your x-axis, this is y-axis, okay? And the axis of rotation, AOR, is called axis of rotation. Axis of rotation is a line, it is not a point. Although in 2-dimension it will become a point. See, so think about z-axis as, so in this diagram, z-axis is my what? AOR. Understood? If z-axis is AOR, so this object will rotate like this, yes or no? If about clockwise, अगर anti-clockwise rotate कर रहा है, तो इसका ओमेगा किस डायरेक्शन में होगा? अगर रोटेट करता है तो ओमेगा इज इन k cap, है ना? Z-axis is AOR and this is what called point about which is rotating, right? Center of rotation बोल लो. But ये this is important that center तब बोलते हैं, मतलब ये center तब बोलते हैं जब only you are looking in xy. अगर तुम सिर्फ xy बोल रहे हो तो ये क्या है? फिर ये एक point है. But if you think in 3D, there is a line z-axis imaginary which is going like this, yes or no? So this, and to be very precise, it is this, yes or no? Because when you're seeing the z-axis, you're only seeing a point. This is your z-axis, yes or no? समझ में आ रहा है? ठीक. अब इस एक्सिस से कितना दूर है मास? समझ में आया? वो
उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल देखो इधर, सपोज एक रॉड है, ठीक है, ये 2 kg का रॉड है, ठीक, और ये 1 मीटर है इसका लेंथ, और एक दूसरा 2 kg का रॉड है, इसका लेंथ है 2 मीटर, इसका लेंथ है 2 मीटर, मास सेम है दोनों का, ठीक, और इसको मैं इस पॉइंट के अबाउट घुमा रहा हूं, इन दोनों का मास सेम है, लेकिन इन दोनों का क्या अलग है, डिस्टेंस एट विच दैट मास इज फ्रॉम द AOR, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, अच्छा सॉरी, जितना दूर होता है उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है, देन ये वाला ना, सो आई ऑफ दिस बॉडी इज मोर देन आई ऑफ दिस बॉडी, अंडरस्टूड, ठीक है। What is this question? How can you say that point is at the beginning, why not at the center? Sorry, Why is the point not at the center of mass? oh okay, you can, I chose to rotate about this point, that AOR is my choice, AOR is my choice. I could have also read about this point, center of mass. I could have also read about random point, but then asking I will be difficult. मतलब comparing I would be difficult. Isn't the both sides greater than the मान लो COM के अबाउट तो अगेन सेम आंसर है, COM के अबाउट सेम आंसर है, बट अगर मैं रैंडम पॉइंट बोलूं तो फिर थोड़ा मुश्किल है, तभी भी शायद ये वाला ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, बट ठीक है, ओके, अग्रीड, ठीक है, समझ में आ गया। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इट इज इंटीग्रल dm into r square, it's very simple, it is integral dm into r square, and to understand it you have to say like this, ask each dm, okay, what is your r, ask each dm what is your r, ठीक है, do dm into r square, ठीक है, then go to next dm, repeat, and then add those values. So integral मतलब add those values, add above values. This is very important here to understand. If you want to understand deep मतलब what is I and therefore solve problems, okay, no amount of formula mugging can give you as powerful as this. This is the thing. Ask each dm what is your r, matlab what is your distance from the axis of rotation, do dm r square, and then go to next dm, ask the same question, do dm r square, then I'll add all these dm r square, dm r square, dm r square, okay. So यहाँ पे सबसे सिंपल केस जो होता है वो देखते हैं, there is a ring of mass m and radius r, there is a ring of mass m and radius r, and you're rotating it is about this axis, this is geometrical center only, okay. This is again a 3D diagram, right, बैंगल है, बैंगल को ऐसे घुमा रहा हूं, ठीक। सो दियर एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो ये वाला पॉइंट, ये dm है, दिस dm, it is at how much distance, capital R radius, so I will do for this dm, I will do dm into r square, yes or no, then I'll go to the next dm, let's say this dm, I go this dm, and I will ask the same question, at what distance are you, क्या r, तो plus dm into r square, yes or no, plus I'll go to this dm, I have to complete this all for the whole ring, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा बताओ, इंफिनिटी तो ना हो जाएगा, रिंग फाइनाइट है कि नहीं, हाँ ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट्स आर इनफाइनाइट, इफ यू ऐड ऑल दोस पॉइंट्स व्हाट डू यू गेट, बेटा ये देखो इसमें आर स्क्वायर कॉमन है, ये सुनो, अरे सब में आर स्क्वायर तो कैपिटल आर स्क्वायर तो कॉमन है ना, अभी अंदर क्या है, dm प्लस कितना बार dm, मतलब ये टोटल क्या है ये, हाँ इन्फिनिटी, ये टोटल का वैल्यू कितना है ये पूछ रहा हूं, m नो, मास ऑफ द रिंग कैपिटल M, गो ईच dm मतलब एक छोटे छोटे मास से पूछो, आस्क दिस क्वेश्चन कि वेयर आर यू,
इस रिंग को पहले छोटे छोटे में तोड़ दो, समझ में आया? अब इस रिंग में स्पेशलिटी है कि उसका हर मास कितने दूर पे है, आर पे। तो सारे का आंसर क्या आएगा, सब लोग क्या आंसर करेंगे। और तुम्हें और थोड़ा समझना है तो एक्चुअली ये DM1 DM2 DM3 ऐसे करके मेरे को लिखना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट मास से पूछा कितना आंसर है, R² DM ऐसे कर करके ये समझ में आ गया, MR² आएगा, ये सर नो, समझ में आ गया सबको, ठीक। अब बताओ मुझे, क्वेश्चन ये हो गया 1 रिंग का, ठीक है। क्वेश्चन 2, अगर ये रिंग नहीं है डिस्क है, क्या है? सो रिंग और डिस्क में क्या फर्क होता है? रिंग इज अ बैंगल, disk is a ring is hollow but disk is full, so this is disk. Again mass m and r, so you have to ये ध्यान से देखना, ये अभी भी इसका मास m है और रेडियस कितना है r। अब मुझे बस इतना बताओ, इसका रिंग से ज्यादा होगा कि कम होगा? थोड़ा सोच के बोलना, सोच के बोलना कि इसका जो रिंग, इसका जो आई है वो रिंग से कम होगा कि ज्यादा होगा? सोच के बोलो, सोच के। इक्वल क्यों होगा? देखो मास सेम है लेकिन आई इज अ फंक्शन ऑफ बोथ मास एंड डिस्टेंस फ्रॉम द वेयर द मास इज। अरे भाई डिस्क में पूरा भरा हुआ है, ये डिस्क में पूरा हर जगह मास है। रिंग में सिर्फ, रिंग में कहा था मास? सिर्फ पेरीफेरी पे था, सरकमफेरेंस पे था। डिस्क में कहा? हाँ, डिस्क ग्रेटर, अच्छा। So why is the mass is concentrated in मास the सेम, band of the very good, so she is going to the same, correct. Mass in the ring, the mass is concentrated at the peripheries, only the periphery, circumference. But in disk the same mass is distributed everywhere. So some masses in the disk are at a distance lesser than capital R. Some masses of the disk are lesser than capital R. So इसका I क्या होगा? लेस देन होगा कि मोर होगा? उससे क्या होता है? हाउ मेनी, हाउ, देखो सुनो, masses will add up same. देखो मान लो तुमने इस m को 100 पार्ट्स में तोड़ा था, कितने पार्ट्स में? 100 पार्ट्स में। 100 से पूछा कितना डिस्टेंस है, सबने आंसर क्या दिया? कैपिटल R। अगर तुम इस मास को 100 में तोड़ते हो तो क्या 100 के 100 कैपिटल R देंगे आंसर? नहीं देंगे, कुछ लोग R से कम देंगे, कम देंगे ना। तो इसका आंसर क्या होगा? लेसर होना चाहिए। हाँ, अब इसका इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं बट अभी के लिए लिख लो, इट इज MR²/2, इट इज हाफ MR², ठीक है। So if it's a disk, it is MR²/2. Understood? अब अपने आप बताओ, अगर ये एक चीज है, इसका वैसे रिजल्ट तो नहीं पता, ठीक है, मुझे भी नहीं पता, बट अगर ये ऐसा है, एक ऐसा डिस्क है, एक रैंडम डिस्क मैंने बनाया जो मैंने अपने मन से बनाया है, उस डिस्क का मास अभी भी m है, अभी भी कितना है? m है। और इट इज लाइक अ CD, तो अंदर का उसका रेडियस कितना है? R/2, और इसका रेडियस कितना है? R, ठीक है, बाहर का रेडियस R है। अब मुझे ये बताओ, इसका जो ये जो रैंडम ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है I3, ये किसके बीच में लाई करेगा? लेसर देन किसका होना चाहिए यहाँ पे? ग्रेटर देन, यहाँ पे डिस्क से बड़ा होना चाहिए, ये सर नो, और रिंग से छोटा होना चाहिए। समझ में आ गया? द थिंग इज कुछ नहीं है, अरे यार मतलब सेम रेडियस का ऑब्जेक्ट है बाहर वाला, अंदर वाला बस R/2 है, मतलब यहाँ खाली है, यहाँ खाली, यहाँ कुछ नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? समझ में आ गया? ठीक है। I3 is lesser more than I disk and is lesser than I ring, ठीक है। और बाय द वे इसका आंसर 3/4 नहीं है, मतलब तुम ऐसा मत सोचना कि बीच में है, ठीक है, दोनों के, क्योंकि उसका 1 है, इसका 1/2 है, तो 3/4 नहीं है, मतलब हो ही सकता है बट नॉट श्योर। क्या पता नहीं, बैठ गया होगा कोई, जैसे लोग कैसे, बच्चे कैसे हैं ना 9th ग्रेड में, 8th ग्रेड में, ठीक है। अब देखो एक चीज और सुनो ना, थोड़ा इमेजिनेशन पार्ट। ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, ये तुम्हारा रिंग है,
तो सॉरी, एक्सिस ऑफ रोटेशन थोड़ा 3D बनाने के लिए ये दे बना दिया, ठीक। मैंने क्या किया, इस रिंग, कहां से डिस्टेंस मेजर करते हैं मास का? मास का डिस्टेंस कहां से मेजर होता है? फ्रॉम AOR से मेजर होता है, ठीक है। और AOR के बारे में खास बात ये है, AOR मतलब होता है, सपोज मैं तुमसे बोलूँ ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और इससे ये डिस्टेंस D पे ये है, ठीक है, D पे कुछ पार्टिकल है, पॉइंट P इज डिस्टेंस D। तो अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल चलता रहूं और P डैश, इसका डिस्टेंस कितना होगा? D होगा, है ना? ये समझ में आता है? ठीक है। तो अब इधर देखना, इधर का एक मास, ये DM1 जो है ना, रिंग, रिंग का इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? m, r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? mr²। इस मास को उठा के मैं नीचे कर दूं थोड़ा, बस, सच दैट अभी ये डिस्क कैसे लगेगी, अभी रिंग कैसे लगेगी, ऐसे, और यहाँ पे टूटा है और यहाँ पे है मास, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा क्या? होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? From the ground, ग्राउंड, so like the distance. from this the distance, AOR is the same. yes, this distance from the AOR, this is AOR, right? AOR is this straight line, उससे तो सेम ही है डिस्टेंस, है ना? तो इसका, ये जो नया ऑब्जेक्ट है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज हाउ मच? अविता, डोंट यूज फोन, व्हाट आर यू डूइंग? I'm not doing anything. ओके, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सेम, राइट? इसका मतलब कि इफ आई, ये जो डीएम को ये मैं शिफ्ट नहीं कर रहा हूं, इस डीएम को मैं फैला दे रहा हूं ऐसे, मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूं ऐसे, कि अभी भी इसका मास DM1 ही है, बट आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग इट इवनली लाइक हियर। भाई ये अभी क्या किया था, मैंने इस पॉइंट को उठा के, इस पॉइंट को उठा के पूरा यहाँ शिफ्ट कर दिया था, वो नहीं कर रहा हूं मैं, कर, वो पॉइंट एक गोला था ना, उस गोले को मैं एक लाइन बना दे रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन, ऐसी स्ट्रेट लाइन। अभी भी इस ऑब्जेक्ट का सेम है? नहीं सेम है। So DM, हाँ, तो ये अभी भी मास देख, इस पूरे का मास अभी भी DM1 है ना, अभी भी R सेम ही है, यस और नो? तो अभी अभी देखो, ये थोड़े और छोटे छोटे में बट गया, पर अगेन इंटीग्रल DMR स्क्वायर तो सेम ही होगा ना, इतने पार्ट का, यस और नो? इसका मतलब ये है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन क्या होता है? एक्सट्रूजन क्या होता है? एक्सट्रूजन मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, हाउ डिड यू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर? वॉल्यूम सिलेंडर, सिलेंडर क्या होता है? एक πr² एरिया होता है, और उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? h से। सो दैट 3D process is saying you have an area and you extrude it along a height, ऐसे लंबा कर दिया हाइट की तरफ, एक एरिया को उठा के खींच दिया, ठीक है। तो एक्सट्रूजन में, एक्सट्रूजन प्रोसेस से चेंज नहीं होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्सिस, समझ में आया? तो अगर कोई भी जो सिलेंडर है वो किसका एक्सट्रूडेड है, किसका एक्सट्रूडेड वर्जन है सिलेंडर? डिस्क का। फिल्ड सिलेंडर किसका है? डिस्क का है, सॉरी, हाँ, हॉलो सिलेंडर किसका है? हॉलो सिलेंडर इज एक्सट्रूडेड वर्जन ऑफ व्हाट? रिंग। हॉलो सिलेंडर इज, समझ में आया ये? सो इफ यू डू रिंग को, अगर इफ यू डू द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रूजन अलोंग AOR, तो क्या मिलेगा तुम्हें? हॉलो सिलेंडर। यानी हॉलो सिलेंडर का भी क्या सेम होना चाहिए ना, MI। तुम ऐसे इसको इमेजिन करो, अभी हर मास को ऐसे खींच देता मैं, है ना, तो सिलेंडर बन जाता हॉलो सिलेंडर, यस और नो? अब इसका भले ही लेंथ कुछ भी होता है, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको चाहे तुमने इतना खींचा, चाहे तुमने इतना बड़ा खींच दिया, नॉट, डज नॉट मैटर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सिर्फ इस R और ये M और mr², यस और नो? तो हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr²। समझ में आया? any point in the box. नहीं, वो पूरे पूरे ऑब्जेक्ट का, पूरे पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस। So the जैसे normal thing जैसे would be a सुनो सुनो, ये रिंग का पूरा पूरा रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस है mr²। किसी और एक्सिस के अबाउट कुछ और होगा, इस एक्सिस के अबाउट कुछ और होगा, उसके बाद में आएंगे, समझ में आया? बट इस रिंग ऑब्जेक्ट का इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा? mr²। इस डिस्क ऑब्जेक्ट का, ये डिस्क ऑब्जेक्ट का इस एक्सिस के अबाउट कितना है? mr²/2। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे ये सिलेंडर अगर है कुछ, इफ देयर इज अ सिलेंडर of mass m and radius r, it doesn't matter what the length is,
If you're rotating about this point, then its I is equal to hollow cylinder, sorry, hollow cylinder तो कितना है mr square. समझ में आ गया? So the requirement from like plotting the specific point B and one. That total is Total, the integral total mass dm if you add up, it is empty. ठीक है? And if it is a filled cylinder, then the answer is mr square by 2. ठीक है? अभी now there are some results which are without proving, I'm telling you. ठीक है? जल्दी लिखो. Filled cylinder. But you remember this process of extrusion. अगर तुम्हें कहीं लगे कि extrusion हुआ है, तो याद रखना कि वो सेम होगा. Filled cylinder का कितना है mi? And whenever you are saying mi above cylinder, so you always have to specify about which axis. Telling mi of something without telling the axis is incomplete information. Yes, yes. Sphere next आ रहा है. No. Well, we'll see why. इसका है mr square by 2. और चलो स्फीयर को देखते हैं. ठीक है? अब स्फीयर पहले दो तरह के स्फीयर है. एक है कौन सा? हॉलो. और एक कौन सा है? फिल्ड. तो हॉलो का जो होता है, याद रखने के लिए, हॉलो का ज्यादा होगा कि फील्ड का ज्यादा होगा, ये बता दीजिए पहले. हॉलो ज्यादा होगा ना. वेरी गुड. सारा मास तो दूर है. और फील्ड में क्या है, थोड़ा मास थोड़ा पास पास में भी है. 2/3 ज्यादा होता है, 2/5 ज्यादा होता है. 2/3 ज्यादा होता है. तो हॉलो का होता है, मैं ऐसे याद रखता हूँ, हॉलो और फील्ड स्फीयर से ये. और इसका है 2/3 mr स्क्वायर. और इसका है 2/5 mr स्क्वायर. वेयर अगेन द मास लाइक स्फीयर मास m and रेडियस r. और एक्सिस जो होता है ऑफ कोर्स वो होता है सेंटर ऑफ द स्फीयर के थ्रू पास होता हुआ. ठीक है? मैं बताता हूँ तुमको. मैं आ रहा हूँ, पहले लिख लो, फिर मैं तुमको समझा रहा हूँ क्यों सेम होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए. इस पर डिस्कस करते हैं. किसके सेम तुमको लगता है, किसके सेम? रिंग के जैसा होना चाहिए. देखो ध्यान से देखना. इसको 3D में सोचो. 3D में ग्लोब, अर्थ का ग्लोब सोचो. अर्थ का ग्लोब है. ठीक है? ये है तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक. तो मैं ना ऊपर से देख रहा हूं जहां से नॉर्थ पोल है. नॉर्थ पोल पे खड़ा हूं मैं. ठीक. मुझे अर्थ ऐसे दिखाई दे रही है. ये नॉर्थ पोल है. ठीक. ठीक है? और यहां से मेरा जो लाइन है एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो इसी नॉर्थ पोल साउथ पोल लाइन से जा रहा है. अब मुझे तुम ये बताओ कि क्या सारा मास रिंग में क्या था? सारा मास किसके कहां पे था? कहां पे था? कहां पे था? पेरीफेरी पे था ना. हाँ, पेरीफेरी. गुड. तो एटलीस्ट बोलो कि कम से कम ये तो बोलो कि डिस्क के बराबर है. रिंग तो मत बोलो. अच्छा, तुम हॉलो स्फीयर को रिंग जैसा बोल रहे हो. ओ गुड. एक्चुअली अ गुड डाउट. देखो इस पर डिस्कस करते हैं कि हॉलो स्फीयर क्यों डिस्क के बराबर नहीं और रिंग के बराबर नहीं है. देखो सर्कल बनाता हूं मैं. एक सर्कल नहीं बनाया एक्चुअली, मैंने 3 डायमेंशन स्फीयर बनाया है. ठीक है? अब एक्सिस बनाता हूं. एक स्फीयर में और रिंग में मास डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फर्क है देखना. हाँ, देख एक्सिस ऑफ रोटेशन ये. ठीक. रिंग में इस एक्सिस से सारा डिस्टेंस आर पे था ना, सारे मास. स्फीयर में है कैसा? ये जो मास है ये है क्या इतना? ये कम पे है ना. कम पे है ना उससे. ये वाला भी कम पे. तुम्हें ये डिस्टेंसेस मैटर करते हैं. समझ में आ रहा है ये? हाँ. तो ये अच्छा बताओ, अगर सारे के सारे मासेस यहां होते, हाँ, तो ये पोर्शन जो ऐसा है वो ऐसा होता, तो फिर क्या आंसर आता? mr स्क्वायर ही आता है ना. बट ये ऐसा नहीं, ऐसा है. अब ये क्या कम है? mr स्क्वायर से कम आएगा कि ज्यादा आएगा? कम आएगा. कम आता है. इट इज 2/3 ऑफ mr स्क्वायर. अंडरस्टूड? समझ में आ गया ये? ठीक है? लिख लो इसका भी रीजन बना के. what this doesn't matter. There is nothing of followers. ये बोल रहा था, इसने पूछा था हॉलो स्फीयर का और रिंग का सेम क्यों नहीं है, तो मैं वही बता रहा था. ओके. Follow will be less. हाँ, रिंग.
16 अगस्त को छुट्टी क्यों है? और वोट कर देना सब लोग, ठीक है? उसमें 16 को छुट्टी क्यों है ये पूछ रहा हूँ। हाँ, अब एक बोल, तुम बोलो। वर्मा लक्ष्मी, व्हाट इज इट? आई वांट टू नो व्हाट इज इट। Okay. So is it a like state festival? Acha. Sorry? Simhavik. World photograph. सत्यनारायण पूजा, ओ ओके, नॉर्थ में इसको सत्यनारायण पूजा है, ठीक है। ओके ओके ठीक है। अब मुझे ये बता दो, हाँ, तो अगर मैं सेम ऑब्जेक्ट में डिफरेंट एक्सेस बना दूं, फॉर एग्जांपल, अब इसका इसका आंसर बताना, ठीक है? ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है? ये एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल को मैं तीन दो एक्सेस के अबाउट घुमाता हूं, एक बार इसके अबाउट I1 और एक बार इसके अबाउट विच इज I2। बताओ I1 ज्यादा है कि I2 ज्यादा है? ज्यादा कौन सा है? I2 will be more। I will be more। देखो किस एक्सिस से ज्यादा दूर पे मासेस, किस में ज्यादा दूर है? इसमें इतना दूर है ना, और I2 से जब एक्सिस है तो कितना दूर पे? इतना दूर पे। तो क्या ज्यादा है? लिखो जल्दी से, I1 इज मोर देन I2। I1 इज मोर देन I2। समझ में आ गया सबको? अच्छा, ये सब एजम्पशन अंडर की ये लेंथ इसका मोर था ब्रेथ से, तभी जो मैंने बनाया है दिख रहा है, ठीक, करेक्ट। विजुअली जो दिख रहा है कि L इज मोर देन B, तब ये सही है, ठीक है? ओके, सो along, sorry, along I this, yes, there is more mass, like this mass is more. Do you understand that all this mass, right, is equivalent to, so also understand one thing, one more very important thing, ये सारा का सारा मास, मान लो इसका मास है, इस रॉड को ना, इस रेक्टेंगल को मैं 10 स्ट्रिप्स में तोड़ता हूँ, 1 स्ट्रिप, 2 स्ट्रिप, 3 स्ट्रिप, 4 स्ट्रिप, 5 6 7 8 9 10, ठीक? तो हर स्ट्रिप का मास m/10 हो गया ना? अब मैं क्या करता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू I2, एक स्ट्रिप ये वाली है जो 8 स्ट्रिप है, ठीक है? 8 स्ट्रिप का मास कितना है? m/8। तो अगर ये स्ट्रिप हो या फिर ये सारा का सारा मास इधर ही हो, m/8 बराबर है m/10, सॉरी m/10 इधर ही सेम है ना, तो उसका mi सेम है, ये ऐसा। यानी कि सारे के सारे मासेस को अगर मैं इधर कर दूं तो सेम है ये सर, नो? सो ये रॉड, तो दिस इज लाइक अ रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ b, where this was b and this was l. This is a rod of mass m and mass and length b. And similar logic for I1, this is the rod of mass again m but length l. तो दिख रहा है? अब दिख रहा है ना? समझ में आ गया? ऐसे लॉजिक से तुमको रिड्यूस करना है, ठीक है? ठीक, चलिए अब आते हैं इसके क्वेश्चंस करते हैं। तुम्हारे पास KCET का PDF है, खोल लो, ठीक है? चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। 47 क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 47। गौरव बोलते जाओ आंसर, मतलब देख के नहीं। Moment of inertia of a body does not depend upon its angular velocity. G. 47 does not depend on its angular velocity। very good, does not depend on angular velocity। how fast it is rotating does not, वो अभी तक बात नहीं किया। जैसे कि मास, इसको ट्रांसलेशन में से क्वेश्चन क्या होगा? लीनियर ट्रांसलेशन में क्वेश्चन क्या होगा ये? मतलब अरे मतलब पहले चैप्टर में अगर ये क्वेश्चन पूछ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज थी? मास। मास ऑफ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स velocity, it does not depend on its velocity, right? Understood, correct। 48, huh? Yeah, Select the wrong statement. Angular velocity is just whole. you just see B is correct or wrong? B is correct or wrong? Yeah.
47, 48, B is correct. Very good. C, खुला कि नहीं खुला, क्या कर रहे हो? खुद ही तुमने ही डाला है PDF, करा करो ना घर पे सॉल्व क्वेश्चंस. I don't even know this. You have the PDF, ग्रुप पे पड़ा हुआ है. You don't have it. It was not. Hmm. C is correct. Hmm. C is correct. C is also correct. D. Correct. D is, what do you think? With the whole thing, then it will be I, sorry, we are doing 48. Okay, 48 मतलब उसका B correct है. B correct है. SI unit of inertia, moment of inertia is kg into meter square. ठीक है, अभी तक समझ में आया ना ये? हाँ. 49, C भी correct है. तो डायमेंशन वही लिखा हुआ है. D इनकरेक्ट है क्योंकि गिवन बॉडी का उसके रोटेशन एक्सिस के अबाउट पे तो डिपेंड करता है. सेम ऑब्जेक्ट का चेंज हो जाएगा. मतलब जैसे रिंग का मैंने बोला इस एक्सिस के अबाउट इतना है, कोई और एक्सिस होगा तो चेंज हो जाएगा. अब तुम मुझे बताओ, सिंपल सी बात, मैं तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ. रिंग का जो ये वाला एक्सिस है इसके अबाउट कितना है? mr². बस इतना, मतलब इस एक्सिस के अबाउट ज्यादा हो कम होगा? yes. इस एक्सिस के अबाउट ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा होगा. क्यों? अभी मास दूर चले गए ना सारे के सारे, दुनिया बढ़ गई तो ज्यादा होगा. समझ में आया? ठीक है. 47 का आंसर है एंगुलर वेलोसिटी. इट डज नॉट डिपेंड ऑन एंगुलर वेलोसिटी. 49 तो, और जो 48 का जो ए पार्ट है ना वो भी बाद में आएगा. ठीक है. 49, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी इज अ वेक्टर. वेक्टर अभी तक बोला, डायरेक्शन बोला क्या? इट इज इन दिस डायरेक्शन. नो, रॉन्ग. बी, मोमेंट डायमेंशन ऑफ मोमेंट, नहीं बेकार, वो पढ़ चुके हैं हम लोग. फॉल्स है वैसे ना, वो भी फॉल्स है. बी फॉल्स है ना. हाँ, ठीक. सी, Moment of inertia plays the same role in rotation or motion as mass does in translation motion. करेक्ट. Or अच्छा, करेक्ट, यही करेक्ट है. ठीक है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन, इट डज डिपेंड ऑन डायमेंशन. ओके, जितना लेंथ, मतलब कितना बड़ा है ऑब्जेक्ट, उस पर भी डिपेंड करता है. अभी तो देखा दोनों भाई, एक रॉड. ये पहला एग्जांपल आज का. डायमेंशन मतलब वो वाला है. ये इस क्वेश्चन में डायमेंशन का मतलब है उसका लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 50, इफ द पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी इज चेंज्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल चेंज? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. नेक्स्ट 51, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज आर डायरेक्शनलेस? बताइए. देखो, मोमेंट ऑफ मोमेंटम तो छोड़ दो तुम, और मोमेंट ऑफ फोर्स भी छोड़ दो. डी आंसर है. ठीक है. 52, if a mass shift towards the AOR, its MI will decrease. Correct. 53 छोड़ दो. 54 कर लो. रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? अगर किसी का रेडियस ऑफ गायरेशन दे रखा है तो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है k. लिखो, रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू k. लिखो, if k is given, then don't read the question, just do mk². डोंट इवन रीड कि भाई क्या है, ऑब्जेक्ट है, मास है, स्फीयर है, क्या है. जस्ट डू mk². जैसे यहाँ पे लिखा है व्हील ऑफ मास 4 kg, बट आगे क्या दे दिया उसने? रेडियस ऑफ गायरेशन कितना है? 0.4. तो मैं तो व्हील तो भूल जाऊंगा, व्हील क्या है कि जो भी है. ठीक है, अपना दिमाग मत लगाना उसमें, गलत हो जाएगा. अगर रेडियस ऑफ गायरेशन दे रखा है तो ऑब्जेक्ट भी नहीं देखना है क्या है, सिर्फ क्या करना है? mk². बस बता दो आंसर कितना है. 4 इंटू 16. हाँ, यस, कुछ तो 0.64. करेक्ट. नेक्स्ट, ट्राइंगुलर लैमिना का मतलब होता है टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, टू डायमेंशनल फ्लैट ऑब्जेक्ट्स. अब बताइए आंसर. मैक्सिमम किसके अबाउट है? ए बी. बीसी, राइट. बीसी के अबाउट सबसे मैक्सिमम होगा ना, क्योंकि बीसी के अबाउट जो ट्राइंगल है सबसे दूर तक फैला हुआ है ना. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. 56, Abhita, are you understanding? 55 is about BC. ठीक. 56, minimum. बताइए बच्चों. HF, is that so?
HF के अबाउट BC is 2AB, नो BC is 2AB, डबल है। HF से ज्यादा दूर है कि EG करोगे तो ज्यादा दूर है मास? क्या पूछा? मिनिमम पूछा है ना ब्रो, मिनिमम मतलब पास देखना है कि, तो EF EG है ना, मिनिमम मतलब पास होना चाहिए ना, ठीक है, सही है ना ये? और 57 का शायद आई अबाउट AB प्लस आई अबाउट BC आई ऑफ CA होना चाहिए, देख लेते हैं। सॉरी, AH and DG, yeah, AH and DG are equal. So see, if you take EG as the axis, then the maximum, so let's say my AE is equal, देखो BC 2AB दे रखा है, BC कितना दे रखा है? 2AB, यानी कि अगर सुनो, अगर AE x है, AE कितना x है, तो EB कितना है? x है। और बताओ AD कितना है फिर? हाँ 4x है, हाँ ठीक, वेरी गुड। अब इस पे आते हैं, EG अगर एक्सिस है तो मैक्सिमम मास कितने डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस पे। और लेकिन HF एक्सिस है तो मैक्सिमम मास कितने? 2x डिस्टेंस पे। तो हाँ, शॉर्टेस्ट तो फिर EG है ना, ठीक है। 57 का आंसर शायद A है, मैं तुम्हें एक थ्योरम बताना है, चेक कर लेता हूँ पहले। 57 का आंसर, 57 का आंसर D है, 57 का D। एक मिनट, IAB, आई अबाउट, अच्छा ये गलत है, करेक्ट करेक्ट, IBC, BC इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है? अच्छा ट्राइंगल्स का, ओ अच्छा इसको 57 ट्राई करो, 57 ट्राई करो, फोन मत चलाओ, क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। BC इज मोर देन, तुम ये बता दो मुझे कि जो परपेंडिकुलर फ्रॉम B होगा ऑन AC, उसका 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 हाइट कितना होता है? हाँ उसका हाइट निकाल लो, फिर हो जाएगा, ज्योमेट्री से निकालो जल्दी से, फटाफट करो, वो एरिया इक्वेट करके निकल आएगा। उस हाइट को h लिखो, फिर टेकिंग 5 as base and that as h, calculate the area that is equal to area of the triangle। कितना आएगा आंसर? हाफ 5h इज इक्वल टू हाफ 3/4, आ गया? 12/5 आ गया, आ गया ना? एरिया इक्वेट करके आ जाएगा, h कितना आया? 12/5 आ गया। 12/5 कितना होता है डेसिमल में? लिखो 2.4। अब बताओ, अब सोचो, अगर IAC होगा तो मैक्सिमम मास कितने डिस्टेंस पर है? वो AC अगर, अब वो 2.4 राइट, और अगर IBC होगा तो मैक्सिमम मास कितने डिस्टेंस पे है? 4 डिस्टेंस पे। तो BC बड़ा होना चाहिए AC से, होना चाहिए ना। देखो अगर AC तुम एक्सेस लेते हो, अगर AC एक्सेस लेते हो तो मैक्सिमम मास जो है वो B पे है, जो दूर पे है। सबसे ज्यादा दूर कौन सा मास है? B। कितना दूर पे है? 2.4 पे, है ना। और अगर तुम BC एक्सेस लेते हो तो मैक्सिमम मास कितने दूर पे है? 4 दूर पे है। तो BC के अलोंग I बड़ा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा ये बताओ, IAB बड़ा है कि IBC बड़ा है? IAB बड़ा है कि IBC बड़ा है? IBC ही बड़ा है, करेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद क्या? हाँ, अब बताओ मुझे, लीनियर में, लीनियर मतलब पहले चैप्टर में काइनेटिक एनर्जी कितनी होती थी? हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ मास। कितना है यहाँ पे? मास के लिए क्या है? अरे मास की क्वांटिटी क्या है यहाँ पे? एनालॉगस। आज पहला लाइन आज का आई। और वेलोसिटी का एनालॉगस क्या है? ओमेगा। दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी फॉर, अंडरस्टूड? ये लिख लो। मास का एनालॉगस रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये तो पहले चीज बताई ना आज।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाते हुए, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? रोटेशन का मास। याद नहीं आता तो जरा इधर देख लो, रोटेशनल इनर्शिया, ठीक है, मास, यहाँ का मास, ठीक है। समझ में आ गया फॉर्मूला? ये ऐसे नहीं याद, ऐसे ही होगा जब वो तुम एनालॉग से तुम वो करोगे, जब तुम उसको पैरेलली समझोगे तभी याद हो पाएगा, वरना बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे याद करने। अंडरस्टूड? ठीक। इसकी यूजिंग दिस प्लीज डू 59 59। आरपीएम को तुमको ओमेगा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कर लो। राउंड्स पर मिनट इज it what? 6000 rpm is 6000, सॉरी 600 into 59 लिखा हुआ है, विच मत बोलो, राउंड्स लिखा है मैंने 59 राउंड्स, 6000 राउंड बाय 60 into 2 pi 600 सॉरी पर मिनट, तो ये गया 10 20 पाई ओमेगा हो गया, तो हाफ। सॉलिड स्फीयर होता है, सॉलिड स्फीयर मतलब कम वाला, तो 2/5 mr², और ओमेगा स्क्वायर कितना है? 20 पाई का स्क्वायर, तो आंसर आएगा 2 गया 400, यहाँ से आएगा 400/5, तो 20 वाला जो भी है 400/5, 405 कितना होता है? 80 पाई स्क्वायर mr², यस 80 पाई स्क्वायर mr²। I am getting 80 pi square mr², which is correct also. तो सॉलिड स्फीयर लिखा है ना, सो आज लिखा तो सॉलिड स्फीयर का 2/5 है, हाँ आज लिखा तो था। ठीक है, दिस काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये सब करने हैं तुम्हें, 60 61 62 ये सब करना, ठीक है। सॉरी, फ्लाई व्हील पता नहीं, चेक, मतलब आई थिंक इस उस क्वेश्चन में के ही दे रखा है ना, और ओमेगा दे रखा है, तो तुम्हें आई निकालना है, तो तुम्हें पता भी नहीं, मतलब यू डोंट नीड टू नो व्हाट अ फ्लाई व्हील इज, ठीक है। चलिए 66 पढ़ो, 66 इसके बाद सारे तुमको करने हैं, ठीक है। ये बताओ 66 बताओ। Imagine something rotating about its axis. Different points on the body have what same and what different. How can we wrong on two levels? अबे यार तुम ऐसे अर्थ को रोटेट करते हुए सोचो, अर्थ का रोटेशन कांस्टेंट ओमेगा से हो रहा है, कांस्टेंट रोटेशन से हो रहा है सेम एंगल, तभी तो अर्थ जो है, तो सबका सेम क्या है, सबका अलग अलग क्या है, हाँ समझ में आया। हाँ, जो जितना एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में है उसका लीनियर वेलोसिटी उतना ही लेसर व्हाट, यस ओमेगा तो सेम है सबका, लेसर, अरे ये देखो v इज r ओमेगा लिखा था ना, v इज
आर ओमेगा, पता नहीं कहाँ लिखा था, जो भी लिखा था, वी इज आर ओमेगा, तो जितना आर कम उतना वी कम। जो चीज एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है उसका लीनियर वेलोसिटी कितना है ऑन ए आर, 0 है, ठीक है। Wait, so if the earth is rotating, what is its angular, linear velocity? Linear velocity, you will have to ask at which point, if you are at the surface. Surface. Yes, for example, earth is rotating, earth is rotating about an axis, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इस लैटिट्यूड पे है 33 डिग्री पे, कौन सा है, यहाँ पे है इंग्लैंड, है ना। और थोड़ा नहीं, 66 पे है, 33 पे कौन सा है लैटिट्यूड पे, कंट्री बोलो जो अप्रोक्सीमेटली 33 पे हो। चाइना, इंडिया, वेरी गुड। और इक्वेटर पे कौन है 0 डिग्री पे, अफ्रीका, यस, ठीक है। नाउ इज द ओमेगा सेम फॉर एवरीवन, वी आर ऑल रोटेटिंग एट द सेम ओमेगा, यस और नो। अबे हाँ ना, Okay. वी आर, Okay. तभी तो सबके लिए 12 घंटे दिन 12 घंटे रात होता है। सबका अर्थ एक रोटेशन एक 24 घंटे में करता है, सबके लिए वही है ना, तो ओमेगा सेम है। इसका वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी कितना होगा, दिस रेडियस, और सॉरी r1 लिखना, स्मॉल r लिखना चाहिए, स्मॉल r इंटू ओमेगा। सो वेलोसिटी ऑफ इंग्लैंड पॉइंट इज r ओमेगा, यस और नो। वेलोसिटी ऑफ इंडिया पॉइंट इज r1, r2 ओमेगा। वेलोसिटी ऑफ अफ्रीकन पॉइंट इज r3 ओमेगा। किसका r सबसे ज्यादा है, अफ्रीका का। इक्वेटर का पॉइंट सबसे तेज से टेंजेंशियल वेलोसिटी से जा रहा है। ये कैसी वेलोसिटी, ये कौन सी वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ठीक है। लीनियर मतलब टेंजेंशियल, सीधी स्ट्रेट लाइन वाली जो वेलोसिटी होती है, ठीक है। और जो पोल पे जो है पॉइंट, उसका लीनियर वेलोसिटी कितना है, लीनियर और टेंजेंशियल 0, 0, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। ओके 67 68 सब, तुम 67 करो यार, अभी करो 67। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन और करने थे, चलो इस पे आते हैं, रुको रुको, इस थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो भी है इसका कर लेना, ठीक आ गया ना। वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको बात करते हैं, 77 पे आओ। ऑन अकाउंट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस एट द नॉर्थ पोल, अगर नॉर्थ पोल पे जो आइस है वो मेल्ट हो गई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पिनिंग अर्थ क्या होगा, रिमेन्स अनचेंज्ड। ये आइस पहले जो है, आइस यहाँ पर है बहुत ज्यादा ना, अगर ये आइस मेल्ट हुई तो क्या बनेगी, ये वाटर, और कहाँ जाएगी, ये यहीं पे तो नहीं रहती, वाटर तो लेवल हो जाता है, तो वाटर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यस और नो। ऐसे ही होता है ना, पूरे सी लेवल तो पूरे वर्ल्ड का बढ़ता है ना। तो ये जो मास ऑफ वाटर था, ये पहले कहाँ था, क्लोज टू एक्सिस था, क्लोज टू एक्सिस था ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी क्या हो गया, दूर चला गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इंक्रीज होगा, यस। अरे मास से उससे सेम, दूरी तो बढ़ गई ना, हाँ उसी का तो वाटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात ही नहीं कर रहे हम, पूरे अर्थ का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दैट इज, उसमें वाटर का भी इंक्लूड है कि नहीं है कि नहीं। रॉक वॉक का तो अनचेंज्ड है, जो रॉक वॉक है वो तो अनचेंज्ड है, बट ये वाटर भी तो कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं, तो चेंज नहीं होना चाहिए, बोलो बोलो। तो एम आई विल डिक्रीज, अभी हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो उसमें इंक्रीज, एम आई विल इंक्रीज। और देयरफॉर अभी हम ये भी पढ़ेंगे कि तो स्पिनिंग अर्थ का जो रोटेशन है वो भी कम धीरे हो जाएगा, ये भी होता है, ठीक है। ओके
अभी So I read it last 2 days. क्या Uh, ओके एक चीज लिख लो लास्ट, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। और कैसे निकालते इसके एक्चुअली, और के कैसे निकालते हैं, यू फाइंड यू कीप द आई ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। सो फॉर एग्जाम्पल अगर एक डिस्क है, डिस्क का आई, इसका के कितना होगा, के फॉर डिस्क, तो आई ऑफ द डिस्क कितना होता है, एम एम आर स्क्वायर बाई टू, अरे एम आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है, इज इक्वल टू एम के स्क्वायर कर देना है, ठीक। तो के का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से आएगा आर बाई रूट टू, समझ में आ गया। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर अ डिस्क, इट इज आर बाई रूट टू, अंडरस्टूड। फॉर अ रिंग के इज इक्वल टू आर आएगा, करके देख लेना, ठीक है, क्योंकि यू विल राइट एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, ठीक है। फॉर अ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, 2/5 एम आर स्क्वायर ना, 2/5 था ना, इट इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो के का वैल्यू आएगा √2/5 टाइम्स आर, ये आएगा के का वैल्यू फॉर अ स्फीयर, अंडरस्टूड। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का डायमेंशन क्या होता है, आर के बराबर ही होता है, बस एक आर से कुछ मल्टीप्लाइड कांस्टेंट होता है, ठीक है, R1 R/1 R/√2 R/√3 ऐसे कुछ कुछ होगा, ठीक है। बस बाय बाय, इनफ फिजिक्स।